हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी सेंटर। तो आज जो मैं वीडियो बहुत दिनों बाद बना रहा हूँ, बट आई थॉट कि इसकी ज़रूरत है। नीट 2021 जो है ज़्यादा दूर नहीं है, अभी 1 ईयर नहीं रह गया है, क्योंकि नीट 2020 जो है वो 13 सितंबर को हुआ। जो भी है कोविड वगैरह की वजह से लोगों को स्ट्रेस था, पढ़ने का मौका नहीं मिला, या फिर जिस भी कारण से कई लोगों का सिलेक्शन इस ईयर नहीं हो पाया, कुछ मार्क्स की वजह से या फिर ज़्यादा मार्क्स की वजह से। कुछ ऐसे हैं जो अभी 12th पास किया है जिनने, एंड दे आर ड्रॉपिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर। और कुछ लोग जो हैं अभी 11th में हैं, दे विल पास क्लास 12th इन द नेक्स्ट ईयर, एंड देन वो नीट 2021 देंगे, राइट। सो इस वीडियो को आप स्ट्रेटजी समझ लीजिए, या फिर आप कह सकते हैं मोटिवेशन समझ लीजिए, या फिर जस्ट अ कैजुअल टॉक कि व्हाट वी आर गोइंग टू डू फॉर नीट 2021। जो मेरा मानना है दैट इज, आप उतने ही मार्क्स स्कोर कर सकते हैं जितने कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आई गेट 500 मार्क्स, यू आर गोइंग टू गेट 490 480। इट इज पॉसिबल दैट आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो एंड यू विल गेट 505। दैट्स द मैक्सिमम लिमिट एंड यू कैन नॉट क्रॉस दैट। लेकिन इफ यू आर एक्सपेक्टिंग कि आपके 600 आएंगे, then it may be possible that you get 550 and not 600 and 590 etc. But 550 is still better than 500, right? I'm not saying कि आप बैठ के सिर्फ expect करें, that is a totally wrong thing. You are not going to just sit and expect yourself to get 600 marks. आपको definitely you'll have to do something, but first thing what you need to have to clear NEET exam, which is one of the most hard, considered one of the most hard exams, you have to have that confidence. आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यू शुड नो दैट यू कैन डू इट। फर्स्ट यू हैव टू बिलीव दैट यू कैन डू इट, देन कुछ ऐसा होगा दैट यू कैन डू इट, राइट। फर्स्ट थिंग, यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस। ये सिर्फ मतलब बहुत लोगों से आपने सुना होगा दैट यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस, यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस। और यू इवन वॉच द मोटिवेशनल वीडियोस। जो मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं, मतलब दे आर लाइक कुछ मीम्स, पिक्चर्स, डॉक्टर्स एंड मेडिकल स्टूडेंट्स की होती है, एंड दे हैव सम सॉन्ग काइंड ऑफ थिंग। दे डू नॉट मोटिवेट यू एट ऑल, क्योंकि दैट इज अ स्कैम। I personally recommend not to watch those videos. वो सिर्फ इसलिए, you can just kill your time by watching those videos. Like you can even imagine कि when you will become a doctor, how will it feel, right? You don't need to read a meme, or I mean see a meme, or listen to a song for motivation. You are the motivation for yourself, right? Second thing about studying. There are many options for studying, but I believe that it depends. It actually depends. बहुत सारे बच्चे जो हैं आकाश, एलन एक्सेट्रा की कोचिंग लेते हैं, कई ऑनलाइन कोर्सेज लेंगे, एंड अ फ्यू ऑफ देम डेफिनेटली, बहुत कम ऐसे हैं विच टेक self study as the main goal, and they actually score good in NEET exam. ऐसा नहीं है कि you cannot do it with only self study. You can do it definitely, but that takes a little more effort. आपको self control होना चाहिए, that is you know कि क्या हो रहा है, what you should do. But most of the students, even I do not do that. Most of the students, because we are still children, I mean not children, but still we are not so mature that we know about our future, what should we do and what should we not do. I recommend to take up one course in a coaching, or maybe online platform. Like there are many platforms, I cannot name them, like Biomentors, Vedantu, and Academy. With Physics wala has launched a new course. It's called something like I don't remember it, but it started on 1 October, right? So all these kind of things can help you, but the main thing you have to have is that you know that what you want. If you know कि
You have to do it. You cannot even imagine being anything else than a doctor. Then you can do it. Definitely you can do it, right? I'm again saying this. This is not kind of a motivational video because it is not some kind of rock music and memes and photos of doctors and study materials, and I'm giving you timetables and all those. This is not a study plan video, not a motivational video, but just a talk of knowing NEET 2021. It is not going to be easy. First of all, you cannot say that since 2019 exam was easy and 2020 was as well not so yeah, hard. Definitely it was not very easy, but definitely it was not hard also. It was kind of mediocre or lower than mediocre, right? So you cannot expect that NEET 2021 is also going to be really easy. You will have to prepare for the worst cases. If it is really hard कि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आए, इतना ज़्यादा हार्ड हो जाए, मतलब अभी आपकी जितनी प्रिपरेशन है उसके हिसाब से अगर आपको एक भी क्वेश्चन ना आए, even then you should be ready for that. And if it is very easy, it's good for you and for all. So don't think कि अगर पेपर easy होगा, it will be good for you. It will be good for everyone, right? So you cannot say that it is good for you to if the exam is easy, right? Last thing I'll say that about the exam, I believe that what you study today, you will not remember that till the date of exam. The most important thing you do for any exam, mainly competitive exams, especially NEET exam, you do revisions, and the revisions include questions that you do again and again. If you just do a question wrong, you just don't, okay, I did this question wrong, what was the answer, what was the solution, and you just go like yes, अब मुझे ये क्वेश्चन आता है. No, that's not the way. Doing questions is a different thing. You do a chapter, एक chapter आपने clear किया, you have cleared all the concepts, you know the formulas. I'm taking the example of physics. अगर आप physics पढ़ रहे हैं, आपने physics को भी, if you have read the chapter, आपको chapter को एक बार read करना पड़ेगा carefully so that you can know the actual concept behind each and every formula, behind each and every machine or whatever you call it, like gadget, etc. So you know the exact concept about everything. First you read the chapter, then you perform all the derivations, get the formulas ready, आपको सारे formula याद हो गए. Then you go to the questions. सबसे पहले आपने NCERT के questions finalize कर लिए. You know the answer of each and every NCERT question. You just look at the questions और आपको answer पता होना चाहिए. It should be so quick and it is not hard really. Average 20 questions हैं each chapter, so that will not be so hard, right? So that kind of a thing. Next जो चीज़ है, जब हम MCQ परफॉर्म करते हैं, most of the students go for JEE exam questions for NEET. Not even JEE mains, वो JEE advanced तक के क्वेश्चन करने लग जाते हैं. That is like what are you doing? टाइम को वेस्ट मत कीजिए. You already have 6 months only. 6 महीने बाकी हैं and you are going to waste a lot more time. So that is not possible. Do not do that. Do not do that. आप क्वेश्चंस करिए. बहुत सारे ऐसे NTA अभ्यास जो ऐप है that has a lot of question sets. आई रिकमेंड कि उनको आप मार्च या फेब में जाके करें. फेब या मार्च या फिर अप्रैल में कर सकते हैं अगर मई में एग्जाम हो, या फिर मतलब 1 या 2 मंथ अर्लियर आप उसको स्टार्ट करें, क्योंकि अराउंड 200 और 250 तक उनमें पेपर हो जाएंगे तब तक, क्योंकि वो और लोग अपडेट कर रहे हैं. साथ ही साथ आप ऐसी जगहों से, अगर आपने कोई कोर्स ले रखा है तो डेफिनेटली वहाँ पे आपको ऑटोमेटिकली क्वेश्चंस एक्सेट्रा प्रोवाइड किए जाएंगे. तो वहाँ पे आपको ऑलरेडी क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जाएंगे. यू विल नॉट हैव टू वरी अबाउट दैट. लेकिन लेकिन आप कुछ और चीज़ें भी कर सकते हैं. लाइक यू कैन टेक मॉड्यूल्स, यू कैन टेक द व्हाट इट से टेस्ट सीरीज.
लाइक एलन के टेस्ट सीरीज इट इज़ अराउंड 3000 एंड ये बहुत अच्छा है क्योंकि एलन में जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स एनरोल करते हैं एंड दे विल गिव यू मतलब लैक्स में बच्चे एनरोल करते हैं लाइक 2 लाख और 3 लाख स्टूडेंट्स आर देयर। सो आप जो है उसमें एनरोल करेंगे तो आपको अपना रैंक पता लगेगा एंड आप इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में अपनी रैंक पता करते हैं, यू गेट अ रैंक ऑफ नीट एक्चुअली, क्योंकि डेफिनेटली वहाँ 18 और 19 में भी नेक्स्ट ईयर 20 लाख स्टूडेंट्स हो जाए, बट स्टिल आप जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स के बीच में अपनी रैंक पता करेंगे दैट इज विल बी बेटर फॉर यू। तो अगर आप ऐसा कोई प्लेटफॉर्म सर्च कर पाएँ जहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने एनरोल किया है, इट विल बी गुड फॉर यू, राइट। तो मैं अब बस वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करना चाहता हूँ क्योंकि मैं ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण नहीं देना चाहता। इट्स नॉट अ अगेन आई एम सेइंग इट्स नॉट अ मोटिवेशनल वीडियो। मोटिवेशनल वीडियोस वो होती हैं, आपने देखी भी होंगी कई सारी, विद अ सॉन्ग, रॉक म्यूजिक एंड ऑल। with a song and rock music and all, but this is not a motivational kind of video, but this was just a talk so that ये बातें, क्योंकि आपने, मुझे पता है कि आपने कई सारी वीडियोस ऐसी देखी होंगी, टाइम टेबल मोटिवेशनल वीडियोस एंड ऑल दोज, बल्कि 13 सितंबर के बाद ही 14 सितंबर से ही लोग शुरू हो गए थे। वेदांतु अकेडमी एक्सेट्रा मैंने वीडियोस देखे, दे आर लाइक आप ऐसे प्रिपेयर करिए, ड्रॉप कीजिए, क्या ड्रॉप करना सही है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। इफ़ यू आर कॉन्फिडेंट कि ड्रॉप करने के बाद आई कैन गेट द एग्ज़ाम और योर पेरेंट्स आर सपोर्टिंग, आपको यही करना है, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग एल्स, तो आप ड्रॉप कीजिए, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। एंड जहाँ तक डायरेक्टली 12th पास करने के बाद एग्ज़ाम देना है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप कर पाए, दैट इज़ वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, नथिंग कैन बी बेटर देन दैट। बट जो ड्रॉप करके करता है दैट इज़ ऑल्सो नॉट रॉन्ग, राइट। तो तब तक वीडियो आगे आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे बहुत सारे बायोलॉजी के वीडियोस हैं, लगभग बहुत मतलब अराउंड 10 to 12 चैप्टर्स मैंने पूरे कंप्लीट करे हुए हैं, जिनके लेक्चर्स आपको इस वीडियो के लिंक पे भी मिल जाएंगे या फिर आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन दबा दीजिएगा। आपको जो है, मैं कोर्स नहीं कहूँगा बट मैं हर चैप्टर की आगे से कोशिश करूँगा, बायो की डेफिनेटली। जो अनाउंसमेंट लिख के आई थी दैट वाज कि अब जो है इस चैनल पे रेगुलर वीडियोस आएंगी। और रेगुलर वीडियोस किस चीज़ की होंगी, मैं जो है हर चैप्टर के बायो की, मतलब चैप्टर 1 जो 38 चैप्टर्स हैं, क्योंकि हमारे टोटल, आपको इतना पता होना चाहिए, सिलेबस के बारे में आपको पूरा पता होना चाहिए। सो जो चैप्टर 1 है हमारा क्लास 11th का, दैट इज़ द लिविंग वर्ल्ड, वहाँ से लेके आपका क्लास 12th का इकोलॉजी तक हम सारे के सारे चैप्टर्स जो है कंप्लीट करने वाले हैं, मतलब पॉपुलेशन एक्सेक्टर जो है सारे कंप्लीट करने वाले हैं। तो उन सारी वीडियोस को आप ज़रूर देख लें। आई वुड से कि जो सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनके लिए ज़्यादा सही रहेगा। जो कोर्स ले रखा है जिनने, वो सिर्फ टॉपिक के लिए, आप टॉपिक सर्च करिएगा, उसके लिए चैनल की वीडियोस अगर आएंगी तो आप देख लीजिएगा। वैसे आई थिंक कि ज़्यादा मेरी वीडियोस आपको नहीं दिखेंगी सर्च में, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर्स कम हैं और अगर आप सपोर्ट करेंगे तो वन डे वी विल ऑल्सो प्रोवाइड द वीडियोज़ ऑफ एवरी चैप्टर एंड एवरी सब्जेक्ट। तो यही थी अनाउंसमेंट कि अब से बायो की जो है हर चैप्टर के हर टॉपिक की वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल होंगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ लाइक द वीडियो।